Hello student, today I will start the chapter tissue. All the living organisms made up of a cell, and cell are the two type, unicellular organism and the multicellular organism. Cell, unicellular and the multicellular. Multicellular organism. Two type of the organism, unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism, all the body activity performed by the single cell, and multicellular organism, their body activity performed by the different type of the cell. And multicellular organism is made up of the millions of the cell. Most of the cell are specialized to carry the special function. In the human beings, like the muscle cell, relax and contract, then what causes the movement. Then nerve cell carry the messages, blood flow and transport the nutrient, hormones, vitamins and the minerals and the waste product also. So in the case of the plants, xylem also conduct the water and minerals, and the phloem conduct the food material. So these are the different type of the cell perform the different function. In multicellular organism, there is a division of the labor, means different group of the cell take up different function, and such a group of cell is called tissue. हर एक ग्रुप के सेलों का अलग अलग काम होता है और वो ग्रुप के सेलों को ही हम टिश्यू कहते हैं. The tissue may be defined as the group of the cell that have a common origin, shape and structure, and they work together to achieve common function. Formation of the tissue has resulted the division of the labor in multicellular organism. Means हर एक सेल का अलग अलग काम बटा हुआ है. जैसे मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, मूवमेंट होगा. ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट हमारा ट्रांसपोर्ट होगा. नर्व्स से क्या होगा, मैसेज जाएगा. तो अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग वर्क बटा हुआ है. तो ये इंपॉर्टेंट है टिश्यू का. देन टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म द ऑर्गन. When many tissue are organized together, combined together and perform a particular function, and this is called the organ. तो टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन. और ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. Then third importance of the tissue is the origin of the tissue has reduced the workload of the individual cell. अगर टिश्यू नहीं होता तो क्या होता, सारा काम, मूवमेंट्स का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, मैसेज पहुंचाने का काम, सारा काम कौन करता है, एक सिंगल सेल करता है. और उस पर वर्कलोड क्या होता, बहुत ज़्यादा होता. लेकिन अब टिश्यू हो जाने की वजह से एक सिंगल सेल पे वर्कलोड कम हो गया है. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टिश्यू. आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द टिश्यू? नो. प्लांट्स और एनिमल्स एक तरह के टिश्यू के मिलके नहीं बने होते. क्यों? क्योंकि प्लांट्स एक जगह स्टैंड होता है, खड़ा रहता है, मूव नहीं करता. और क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बना लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उसे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती. बट एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो मूव करने में, वर्क करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनिमल्स टिश्यू में को ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, प्लांट्स में कम होती है. सो इसलिए प्लांट टिश्यू आर मोस्टली डेड टिश्यू, बट एनिमल टिश्यू आर द लिविंग टिश्यू. प्लांट टिश्यू आर द सपोर्टिव एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ.
and need less energy. In the plant tissue, there is need less in amounts of the energy because they are the supportive and the protective, provide the mechanical strength. Animal tissue carry different function and need more energy. Most of the plant tissue are the dead, but animal tissue are the living. In plants, the growth is limited to certain region, but in the animal tissue, growth is uniform. Plant tissue growth is limited to the certain region, but animal tissue growth is uniform. There is a clear demarcation in dividing and non-dividing tissue in the case of the plants, but in the animal there is no demarcation dividing and non-dividing tissue. Tissue organization is simple in the plant, but animal tissue organization is the complex. Complex क्यों होगा? क्योंकि इनको वर्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. ये डिफरेंट का वर्क करते हैं एनिमल इन कंपेरिजन टू द प्लांट, तो इनका टिश्यू नेचुरली कॉम्प्लेक्स होगा. क्योंकि टिश्यू कॉम्प्लेक्स होगा तभी वो अच्छी तरह काम कर पाएगा. प्लांट सिंपल होते हैं, सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं, इसमें मोस्टली डेड पाए जाते हैं क्योंकि उनको वर्क की ज़रूरत उतनी नहीं होती, कम होती इन कंपेरिजन टू द एनिमल्स. सो अभी तक हमने देखा टिश्यू क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या अंतर है. दोनों हम साथ लेके चल रहे थे कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या अंतर है. अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डिवीजन divided into two parts, meristematic tissue and the permanent tissue. When the tissue has lost their power of division, they change into the permanent tissue. Then meristematic tissue on the basis of their location divided into three types: apical meristem, intercalary meristem and the lateral meristem. Permanent tissue ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट. किसी में एक सेल से ही एक ही तरह के सेल होते हैं, किसी में बहुत कई तरीके से के सेल मिलके एक काम को करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरह के सेल होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कई तरह के सेल मिलके एक काम को परफॉर्म करते हैं. Then simple permanent tissue are again divided into two types: supportive tissue and the protective tissue. Then supportive tissue are the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These are the supportive tissue. Then protective tissue are epidermis and the cork. These are the protective tissue. Then and this is the simple permanent tissue. Then complex permanent tissue are divided into two types: xylem and phloem. पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर अप करेंगे. तो फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव ए मेन कैरेक्टर. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव ए पावर ऑफ डिवीजन एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द सेंटर. न्यूक्लियस इसके सेंटर में पाया जाता है. साइटोप्लाज्म जो है डेंस होगा और वैक्यूल्स या तो छोटे होंगे या तो एब्सेंट होंगे, और इस सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है. तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दीज सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. दो सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा. एंड द सेल मे बी स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल. सेल वॉल is thin and made up of cellulose. Nucleus is prominent and centrally located. This is the nucleus. Cytoplasm dense and vacuoles are small or the absent. These cells have a power of division. So this is about the character of the meristematic tissue. Then type of the meristematic tissue. Type of the meristematic tissue. Meristematic tissue or the three types:
apical meristem, intercalary meristem, and the lateral meristem. I have told you मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है पावर ऑफ डिवीजन. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन होता है, पावर ऑफ डिवीजन होता है, और इसकी वजह से पौधे कहाँ पे पाए जा रहे हैं वो टिश्यू, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इनको 3 भागों में बांट देते हैं. एपिकल मेरिस्टेम ये प्लांट्स के शूट और रूट के टिप पे पाया जाता है, और जैसा कि हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है पावर ऑफ डिवीजन, तो इसकी वजह से जब ये डिवाइड करते हैं तो प्लांट के शूट और रूट लंबाई में ग्रोथ करते हैं. तो दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम. देन सेकेंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्लांट के जहाँ से पत्तियाँ लीव्स निकलती हैं उनके बेस पे, या जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं टिंक्स के बेस पे पाए जाते हैं. और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करता है, तो इससे जो है पौधे बेंडिंग मूवमेंट्स करते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांचेस मूव करती हैं. इधर से ब्रांच निकलेगी, ब्रांच मूव करेगी, फिर यहाँ ब्रांच के टिप पे फिर यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम. और यहाँ क्या पाया जा रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. यहाँ पाया गया जिससे कि ब्रांच इधर मूव की, और इसके टिप पे पाया गया एपिकल मेरिस्टेम जिससे कि ये आगे ग्रो करते हैं. देन थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम ये वस्कुलर बंडल वाले रीजन में पाया जाता है बीच में, और जिसकी वजह से जो प्लांट है इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पौधों को मोटाई देते हैं, पौधों की ग्रोथ बढ़ती है इसके डिवीजन से. सो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देयर टाइप. When the meristematic tissue lost their power of division, जब ये अपना power of division खत्म कर देते हैं, then they change into the permanent tissue. अब हम इसके बाद देखेंगे permanent tissue. Permanent tissue. When the meristematic tissue lost their power of division, change into the permanent tissue. So the permanent tissue cell may be living or the dead. Both, but meristematic tissue cell is always living. The cell may have thin or the thick cell wall, but in the case of the meristematic tissue, the cell wall is thin. Cell of permanent tissue do not divide, but the cell of the meristematic tissue divide. Nucleus is absent in the permanent tissue, but nucleus are centrally present in the meristematic tissue, and nucleus are absent in the permanent tissue in the dead cell, but small in the living cell may present. So this is about the permanent tissue and the differences between the meristematic tissue and the permanent tissue. Then permanent tissue again divided into 2 types, simple permanent tissue and the complex permanent tissue. And simple permanent tissue made up of a single type of the cell, but complex permanent tissue made up of many type of the cell perform a function. So simple permanent tissue are 2 types, supporting and the protective. Supporting में parenchyma, collenchyma and sclerenchyma 3 types, and protective में epidermis and the cork. ये 3 types से किसके हो जाएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के. ये एक ही तरह के टिश्यू से मिलके बने होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये कई सेल मिलके एक काम को करते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है. इसको सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ही तरह के सेल के मिलके बने हुए होते हैं. देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू are again divided into 2 types, xylem and phloem. ये फिर 2 भाग में बढ़ जाते हैं, पहला xylem है, दूसरा phloem है. Parenchyma tissue. Parenchyma cell are the living and the cell wall is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose and the intercellular space are also present. Cytoplasm is dense. Vacuoles are present. Nucleus are also present here. So this is the structure of the parenchyma. जब parenchyma सेल में के साथ क्लोरोप्लास्ट आ जाता है तो उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और उस समय वो हेल्प करता है
खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड में हेल्प करता है। इसके अलावा जब पैरेन्काइमेटस सेल के साथ एयर बबल्स आ जाते हैं बीच में, तो उस समय उस पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं, और ये एरेन्काइमा हेल्प करता है, बाउंसिंग प्रोवाइड करता है प्लांट को, पौधों को तैरने में मदद करता है। पौधे जो पानी में तैरते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? वो पैरेन्काइमा सेल के अंदर एयर बबल्स आ जाता है, जिसकी वजह से पौधे पानी के अंदर तैरते हैं। तो दे हेल्प इन द फ्लोटिंग द प्लांट्स। सो दिस इज अबाउट द पैरेन्काइमा एंड देयर फंक्शन। कोलेनकाइमा. Conilkaima cell is also the living cell, but slightly differences between the parenchyma and colenchyma. कोलेनकाइमा में जो सेल वॉल बनी है, ये किसकी बनी है? सेलुलोज और पैक्टिन, यहाँ दोनों की कंपोजिशन यहाँ पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बट पैरेन्काइमा में हमने बताया कि सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, लेकिन कोलेनकाइमा में सेल वॉल पैक्टिन और सेलुलोज दोनों का बना होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस या तो बहुत कम रहेंगे या तो एब्सेंट होंगे, बट पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट थे। और चूंकि यहाँ पैक्टिन और सेलुलोज की वजह से ये पौधों को टेनिसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज अबाउट द कोलेनकाइमा एंड देयर फंक्शन। स्केलेनकाइमा, दे आर द डेड सेल। अभी तक हमने देखा कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा आर द लिविंग सेल, बट स्केलेनकाइमा इज द डेड सेल। और डेड सेल है तो क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, विदाउट न्यूक्लियस, एंड देयर सेल वॉल इज थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन. Lignin act as a cement and hardness the cell wall. स्केलेनकाइमा की सेल वॉल जो होती है लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से हार्ड हो जाती है, सीमेंट की तरह काम करती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा पैरेन्काइमा की उतनी हार्ड नहीं होती क्योंकि सेलुलोज की सिर्फ बनी हुई होती है। फिर पैरेन्काइमा के बाद हमने देखा कोलेनकाइमा में सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी थी, तो वो हार्ड होती है इन कंपेरिजन टू द पैरेन्काइमा, लेकिन उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। लेकिन स्केलेनकाइमा में सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन तीनों का डिपोजिशन होने की वजह से ये हार्ड हो जाती है और सीमेंट की तरह काम करती है। और स्केलेनकाइमा सेल अकर इन टू फॉर्म, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड। फाइबर जैसे नारियल में जो ऊपर का जो छिलका होता है, जूट होता है, वो क्या है? स्केलेनकाइमा फाइबर्स है। और स्क्लेराइड सेल्स जो पाए जाते हैं, जैसे पल्प, जैसे गुआवा का जो हम पल्प खाते हैं तो उसमें हल्का सा हमें सीमेंटेड बीज जैसा आता है, तो क्या है? वो स्क्लेराइड सेल्स हैं। तो इस तरह ये इनके फंक्शन हो गए। तो फाइबर्स प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड स्क्लेराइड प्रोवाइड द grittiness to the pulp of the fruits. So this is about the scalenenchyma and the simple permanent tissue. Complex permanent tissue, जैसे कि हम पहले भी बताए थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल के मिलके बने होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कई तरह के सेल मिलके एक किसी काम को करते हैं, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स रखा गया है। ये दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहले हम देखेंगे जाइलम। जाइलम कंसिस्ट ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ द सेल: जाइलम ट्रेकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. These 3 आर जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकेट्स एंड जाइलम फाइबर्स। ये जो है नॉन लिविंग सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग सेल। और ये चारों मिलके एक काम को करते हैं। वो क्या काम है? कंडक्शन ऑफ वाटर. इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स. ये मिनरल्स और वाटर को, इनकी रूट्स जो है, पानी और मिनरल्स को ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करते हैं. और जाइलम में चूँकि 4 सेल टाइप के सेल मिलके एक
काम को करते हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम इज द लिविंग कंडक्टिव टिश्यू and the cell of the phloems are the four type. First is the sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and the phloem fibers. These three are the living and this is the non-living. This is the living and these are the non-living. So they are called the living conductive tissue because these three cells are the living. And फ्लोएम का काम क्या है? इट कंटेन द ट्यूब ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट फॉर द ग्रीन स्टोरेज ऑर्गन टू द प्लांट टू अदर ऑर्गन। ये ग्रीन पार्ट्स से बना हुआ खाना अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्लोएम। सो दैट्स ऑल with today's lecture. Thank you.